Dhananjay sir, now we can begin the session. It's 3:30 now. Please begin. Okay. At 3:30, please start. Yes, sir. It's so very good afternoon to all of you. On the behalf of University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, we welcome you all in this fourth session of the Faculty Development Program on the theme National Education Policy, a Roadmap for Future India. It's our privilege to have with us Professor Jasim Ahmed for today's session. And before we formally begin the session, I request Bani Preet to please play the Kulgeet of our university. लाएंगे हम सच का सवेरा, गुरु कृपा का होगा बसेरा। विद्या की लौ और लगन से हट जाएगा यह तम घनेरा। इस धरा से आसमां तक हम बना ले अपनी ज्ञान गरिमा। अपने श्रम से कौशलों से हम बढ़ा ले अपनी मान महिमा। फैल जाए अपनी सुगंध हर दिशा में, प्रगति पथ पर ख्याति अपनी हो हवा में। बादलों से ऊंची अपनी उड़ान, हम करेंगे विश्व का कल्याण। हम इंद्रप्रस्थ की अंजुमन, हम इंद्रप्रस्थ को करते नमन। पाले गुरु गोविंद सिंह की राह ज्ञान गंगा गगन। हट जाएगा यह दम घनेरा, लाएंगे हम सच का सवेरा। Preet and Radhika for playing such a beautiful Kulgeet of our university. So before I invite Professor Jasim Ahmed sir, I want to share his rich experience and the research work in the field of academics. Dr. Jasim Ahmed is working as professor at Institute of Advanced Studies in Education, Jamia Millia Islamia. Sir is having teaching and research experience of more than 20 years, and his wide area of interest includes science education, education psychology, research methodology, as well as the teacher education. Sir has published 7 books, more than 60 research papers in several national and international journals, so many chapters in the edited books, more than 16 units in the self-learning material exclusively for the distance education programs and for the regular courses also. A dozen of scholars have been awarded a PhD degree under Sir's supervision, and Sir has also guided various dissertations at postgraduate level.
Professor Ahmed has contribution in various administrative responsibilities like an elected member of the Academic Council, Deputy Director of CIE, Nodal Officer IQAC, member of Proctorial Team. Apart of this, Professor Jasim has also associated with monitoring of various educational schemes initiated by Indian government like Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Sarv Shiksha Abhiyan, Midday Meal Scheme, Adolescent Education Program for Madrasas of Bihar that is sponsored by United Nations Population Fund. Moreover, Professor Ahmed has made valuable contributions in the Government of India's National Mission on Education through ICT in the form of video lectures for Arpit and Swayam Prabha. Professor Ahmed is having substantial collaborations with many universities and institutions of higher learning and has been associated with the apex bodies in the field of school education, teacher education, and higher education. We welcome you, sir. It's our pride and privilege to have with us you, sir. We welcome you. Over to you. Thank you so much, Anjali, Dr. Anjali. Let me say 2 words on the honor of our Jasim sir. Yes, yes. Jasim sir. साहब आदाब अर्ज़ है। आपको जस्ट आदाब करने का दिल था तो मैंने कहा जरा 2 मिनट फिर उसके बाद आप अपना लेक्चर लेंगे। बड़ी मुश्किल होती है ऑनलाइन में, ग्लिचेस इतने होते हैं कि हम जुड़ कम पाते हैं। आज सुबह भी ऐसे कुछ ग्लिचेस हो गए तो जुड़ना चाह रहे थे पर हो नहीं पाए। हाँ, तो मैं सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको पहले बताना चाहता हूं कि डॉक्टर जसीम के बारे में जैसे कि अभी अंजलि जी ने बता ही दिया है। In my personal note, I can say that he is more than a friend. He is a very good brother, colleague, and a very motivating force for all of our endeavors in IP University. Whenever we approach him in any kind of deliberation, he is ready to give his 100% support. And he is one of the pillars of IASC Jamia Millia Islamia, and his work is indeed has been appreciated by Government of India. Today he will deliver his talk on implementation of new policy of education, which is itself is a big challenge, because in our India we are very good in exhibition, we are poor in implementation. So how we can implement it, because 1947 onwards we have so many documents available. 1948 Radhakishan Commission, Modalier, then we have Kothari Commission, then we have policies, first 68, then 72 revised, then 76, then 1986 for national policy, and now after 36 we have new policy of education. So we are good in policies, but somewhere we are lacking in implementation. So this session will be fruitful. So he can tell us what is the roadmap for faculty members, how we can implement it. With these words, I welcome you, Dr. Saab. हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत, और अब आपके हवाले ये वतन, और thank you very much for sparing your valuable time for our faculty development program. Over to Professor Jasim Ahmed. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Dhananjay sir, for the warm welcome of Jasim sir. Thank you so much. थैंक यू अंजलि, थैंक यू जसीम साहब, बहुत बहुत थैंक यू। आप प्लीज आप सत्र आप कर सकते हैं, हम आपको चाय पानी तो नहीं पिला सकते वर्चुअल मोड में। वो तो आपसे कभी भी पी लेंगे, वो साथ बैठेंगे तो। That is the only limitation in the online program. प्रोफेसर धनंजय जोशी साहब ने जो बात अभी कही कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। वाकई धनंजय जोशी साहब जामिया अक्सर बेशतर आते रहते हैं। मैं भी किसी न किसी काम से जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं हाजिर रहता हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी काम में। मुझे लगता है कि शायद हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और एजुकेशन के अंदर, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात करें और हायर एजुकेशन की बात करें, this bond is very important, very crucial. Unless we have this kind of a strong bond, unless this kind of attitude we have to cooperate with one another, with each other at different levels of education, we can't do justice with the whole education system. So that is required to be maintained for all times. Anyway, so the title of today's session given to me is role of teachers, role of faculty members in the implementation of National Education Policy 2020 for higher education.
जोशी साहब ने बहुत सही कहा कि ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना हिंदुस्तान की तकदीर में शायद ऐसा रहा है कि हम पॉलिसी बहुत अच्छी बना लेते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उस पर जो डिबेट करें, जो बातचीत करें, जो डिस्कशन करें, डेलिब्रेशन करें और कुछ ऐसा रास्ता निकाल पाएँ जहाँ पर शायद सबकी सहमति बने और हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, खासतौर पे हायर एजुकेशन को बेहतर कर पाएँ। When we talk about the implementation of national education policy, not only in higher education, but at any level of education, be it primary education or secondary education or senior secondary education or technical education or any kind of professional education or vocational education. The most important thing which comes to our mind, the very purpose of education. What is the very purpose of education? तालीम का सबसे बड़ा मकसद क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हमें इस बात की जरूरत है कि हमको ये बात याद रहनी चाहिए, तमाम पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी और तमाम इम्प्लीमेंटर्स के दिमाग में भी याद रहना चाहिए। और हमें हमेशा ही अपने एजुकेशन के एफर्ट्स को, इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स को, पॉलिसी मेकिंग के वक्त में जब पॉलिसी बना रहे होते हैं, एंड व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज पॉलिसीज एट द ग्राउंड लेवल, वी मस्ट ट्राई टू असेस इट with those objectives. We are privileged to be from the background of education, especially the teacher education when we talk about. So teacher education is the field wherein at each level of class, each level of schooling, from preschool to senior secondary level, we talk about learning outcomes. We talk about the outcomes which are supposed to be achieved by the teacher whenever he or she teaches in the classroom. So we tend to assess and relate our efforts and students' attainment with the objectives which was set out at the beginning of the class, at the beginning of the session. So having that particular feature in our personality, in our thinking process, in our efforts, in our practices, here at this level also, I think, for the educational policy makers and the implementers at all levels of education, we need to understand what are the most important objectives and what are the most important roles of education that we try to achieve through these system of education at all levels, whether it is at school level or higher education. और इसलिए मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि एजुकेशन का रोल क्या है, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे, आलमी सतह पे क्या उसका हम उन रोल्स को देखने की कोशिश करते हैं। और दरअसल whenever we talk about those roles which education tend to play, which education should play, which education should achieve those objectives in the form of the roles, if we are in a position to assess कि हम उन रोल्स को, हमारी एजुकेशन सिस्टम उन रोल्स को किस हद तक निभा पा रही है, as an educationist, as a faculty member in higher education or as a teacher at school level, चाहे वो किसी भी लेवल पर हूँ, हम सोचें कि हम उन मकासद को, उन उद्देश्यों को हमारी शिक्षा किस हद तक हासिल कर पा रही है। और एज ए शिक्षक, एज ए फैकल्टी, हमें क्या लगता है हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, क्या उन उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं जो हमारा हमारी शिक्षा चाहती है, जो हमारा शिक्षा तंत्र चाहता है, जो हमारा तालीमी निज़ाम चाहता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहता है। तो हम उन 4-5 चीजों पर पहले बात करेंगे और हम सवाल आपसे बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी साथी से, किसी भी कलीग से, किसी फ्रेंड से कि जवाब दीजिए मुझे कि हमने इसे अचीव किया या नहीं किया, एजुकेशन ये रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम सिर्फ अपने गरीबान के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने आत्मा के अंदर झांक करके देखें और ये पूछें कि क्या एजुकेशन का जो रोल था, जो रोल होना चाहिए, वो अचीव हो रहा है, प्ले हो रहा है वो, और अगर नहीं प्ले कर पा रहे हैं तो क्या कठिनाइयां हैं, क्या परेशानियां हैं। उन कठिनाइयों को और उन परेशानियों को दूर करने में फैकल्टी मेंबर जो रोल प्ले कर सकता है, वही रोल हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि फैकल्टी की एक लिमिटेशन है, उसका एक हद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फैकल्टी जो काम कर सकता है वो करे और उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम सरकार को करने का है, कुछ काम फैकल्टी को करने का है। सरकार अपना काम, गवर्नमेंट अपना काम अपने हिसाब से करती है, फैकल्टी को अपना काम करना।
तो हम एक प्रेजेंटेशन की मदद से अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन। सर आप बता दीजिएगा कि वो शेयर हो पा रहा है या नहीं। इज इट विजिबल? जी सर, अभी नॉट राइट नाउ। शेयर अगेन। अब बताइए। यस सर, नाउ इट्स विजिबल। थैंक यू, थैंक यू। इट इज विजिबल सर। आई थिंक आप इसको स्लाइड मोड में करेंगे अभी। I think it is okay. I think it would be legible to all of you. Okay. Yeah, it is visible. Yes. So this is the topic: role of faculty in effective implementation of NEP in higher education. And as I told, that I'm going to first put some light on this, role of education and training in general. When we talk about role of education and training in general, I mean to say the role education should play at all levels of education, be it school level or higher education. So I think the first most important role of education at all levels is a culturating role. Education should culture all the citizens of the country, all the individuals of the country. So the most important role is refining perceptions and sensitivities so as to enrich our culture and promote national cohesion. Now try to see whether our education system has done this job, and if done, up to what extent. If there is a problem, what are those problems because of which we are not in the position to have a culturating role in a good way, in a strength manner, in a powerful manner, in an effective manner. What are those reasons? What might be the cause behind that? So we as a faculty member will try to understand that and try to work in a fashion through which we can achieve these objectives, and we can help education system to play these roles in an effective manner. Then there is combative role, fighting against the destructive tendencies within the individual and destructive forces within the society. Example, racism, casteism, regionalism, communalism, sectarianism, etc., etc. These are the problems which India has been facing since long time. But here we are talking about these roles in terms of our education system, which our country has developed after independence, that's after 1947. हमने कितना काम किया इसमें? हम क्या कम्बाइन कर पाए रेसिज्म को, कास्टिज्म को, रीजनलिज्म को, कम्युनलिज्म को, सेक्टरिज्म को? अगर कम कर पाए तो किस हद तक कम, अगर नहीं कर पाए किस हद तक नहीं कर पाए, इसमें हमें क्या करने की जरूरत है, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर। हम अपनी जब क्लास में हूँ और हमारे पास 50 बच्चे बैठे हों तो हमें कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे उनको एड्रेस करना है, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, अलग अलग रेस के हो सकते हैं, अलग अलग रीजन के बच्चे हो सकते हैं। जब आप दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं ना, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। उनको आप कैसे एड्रेस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को आप कैसे सुनते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप गौर करेंगे तो शायद इन दोनों पॉइंट पे पाएंगे कि शायद हम बहुत हद तक तो कामयाब नहीं है। इसी तरह से आप जब देखिए लिबरेटिंग रोल, अनदर इंपॉर्टेंट रोल, दीज आर द थ्री अनदर रोल्स। लिबरेटिंग रोल, लाइक चाइल्ड एंड सोसाइटी नीड्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन एंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है, गरीबों को दबाना, कमजोरों को कुचलना, है ना, और जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी के, उनका जो ऑपरेशन हो रहा है, उनको जो सताया जाता है, उनको जो परेशान किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से। जो अंधविश्वास है, हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ सुपरस्टिशन सबसे ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि मजहब भी यहाँ सबसे ज्यादा है, रीजन भी सबसे ज्यादा है, रिलीजन भी सबसे ज्यादा है, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, वो सारे के सारे इशू सबके साथ हैं। लेकिन उन सब के साथ हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी कैन फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हम उसको इंजॉय कर रहे हैं,
कर रहे हैं तो किस हद तक कर रहे हैं, क्या इन ऑल सिचुएशन करते हैं या किसी खास सिचुएशन में करते हैं। ये सारे सवाल हैं जो अपने आप से पूछता है और उसको अपने आप जवाब देने का है। और अगर जवाब देने में दुश्वारी हो रही है, कुछ हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा कह रही है कि नहीं कुछ समस्या तो है, तो उस समस्याओं पर हमें गौर करने की जरूरत है, उस पर हमें खुद काम करने की। कहते हैं ना कि शुरू करना पड़ेगा अपने आप से, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये चीज, चाइल्ड लेबर पूरे बहुत जमाने से काम हो रहा है हिंदुस्तान में। चाइल्ड लेबर कारपेट इंडस्ट्री में जाकर देख लीजिए, फिरोजाबाद की चूड़ी के कारखाने में जाकर देख लीजिए, दिल्ली के होटल में आप देखेंगे जाकर के, है ना, तो आपको मिलेगा चाइल्ड लेबर मिलता है, बहुत कॉमन है। ये सारी की सारी चीजें हैं, इनसे अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है, लिबरेटेड है ना, लिबरेशन जरूरत है। इग्नोरेंस, जाहिर सी बात है, एजुकेशन हम देखते हैं कि एजुकेशन स्कूल लेवल पे खास तौर पे कहते तो जरूर हैं, डाटा मेरे पास है कि 99%, 96%, 97% इनरोलमेंट हो गया है, बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान का डाटा है। लेकिन वो एजुकेशन जो हम बच्चों को दे रहे हैं स्कूलों के अंदर, आज कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहाँ बच्चे एमए करके पास हो रहे हैं, एमए हो रहे हैं, बीए कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री डिफरेंट सब्जेक्ट में ले रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं फिर उनके साथ, उनको जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है बहुत सारी, तो ये सारी की सारी चीज़। तो बहरहाल यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर रोल, दैट इज लिबरेटिंग रोल, इज स्टिल टू प्ले। एजुकेशन इज सपोज्ड to play a liberating role again and again, so that we can mitigate these issues prevailing in the society. Then again, the fourth one is integrative role. Means child and the members of the society must be integrated with the society at large, at national level and at international level. हर बच्चा, हर सिटीजन, हर शहरी, हर नागरिक जो है, एजुकेशन एक मीडियम है उसको इंटीग्रेट करने के। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपने घर में पैदा हुआ, अपने घर से भाई बहन और घर के लोगों के साथ, फिर वो समाज के अंदर आता है, स्कूल में पहुंचता है, इंटीग्रेट होता है लोगों के साथ मिलता जुलता है, उसका सर्कल बढ़ता है, फिर वो जो है एक लार्जर सोसाइटी के अंदर जाता है, और फिर वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाता है, और उसका इंटीग्रेशन जितना बेहतर हो पाएगा उतना ज़्यादा वो एडवांस होगा, डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, प्रॉस्पेरिटी उसके अंदर आएगी। जितना इंटीग्रेशन कम होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा बंद रह जाएगा उसकी पर्सनैलिटी, उतना ही ज़्यादा वो अंडर डेवलप, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसका नहीं। तो इंटीग्रेटिव रोल जो है आजकल खास तौर पे जो आईसीटी का ज़माना है उसमें इंटीग्रेशन तो हो रहा है। व्हाट्सएप पे तो हर बच्चा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम में बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हेल्दी इंटीग्रेशन की जरूरत है। आईसीटी में हिंदुस्तान बहुत आगे है ना, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में हमारे आईटीएंस जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत है और ज़्यादा इस पर काम करने के लिए, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए टीचर, कि हमारे जो सिटीजन है, हमारे जो नागरिक है, हमारा जन जनरेशन है, उसका इंटीग्रेशन हो सके पूरी सोसाइटी एट लार्ज और पूरी दुनिया के साथ। जाहिर सी बात है कि मॉडर्न थिंकिंग की जरूरत है, वेस्टर्न थिंकिंग की जरूरत नहीं है, मॉडर्न थिंकिंग की जरूरत है। वेस्टर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। वो चीज़ है, वो इंटीग्रेशन। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए नए जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर, मॉडर्न जो नॉलेज आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मॉडर्न जो है टाइम में जो नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है, उन सब से हमें नए जनरेशन को इंटीग्रेट करना है, तभी जाकर के वो डेवलप होगा और अल्टीमेटली हमारा मुल्क डेवलप होगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर डेवलपमेंट हमारा मुश्किल लार्ज। और लास्ट जो है इकोनॉमिक रोल, जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक रोल्स मीन्स, देखिए आपको अंदाजा बहुत बिल्कुल होगा, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, आज से 50 साल पहले की जब बात करें, आज़ादी के पहले की बात करें, चाहे वो प्राचीन भारत का समय हो, प्राचीन भारत का युग हो, या मध्य भारत का ज़माना हो, मिडिवल इंडिया हो, एजुकेशन उस ज़माने में एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता था, है ना। गुरुकुल में बच्चे जब जाते थे पढ़ने के लिए, पेरेंट्स भेजते थे तो इसलिए नहीं भेजते थे कि द चाइल्ड विल बी एबल टू अर्न मनी, अर्न लाइवलीहुड, ये ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें, तो अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजते थे, टू मेक हिम ए गुड ह्यूमन बीइंग, टू लर्न and earn knowledge, not to make them able to earn money। ये पर्पस नहीं था एजुकेशन।
लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो एजुकेशन का जो वेरी पर्पस है वो चेंज हो गया, वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुका है, चेंज हो चुका है। और सबसे बड़ा मकसद एजुकेशन का ये हो गया है कि आपको लाइवलीहुड अर्न करना है, आपको पैसे कमाने हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो यंग जनरेशन है, यंग सिटीजन है, वो इस लायक हो सके कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर ले, उसको जॉब मिल जाए, अपनी जॉब क्रिएट करे या जॉब उसको एम्प्लॉयमेंट हासिल करे, किसी भी तरीके से होना चाहिए उसको, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लाइन से काफी काम किया, स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत सारे स्कीम है गवर्नमेंट की, वोकेशनलाइजेशन पर काफी फोकस किया जा रहा है, जिससे कि हम इस गोल को अचीव कर सके। हम लोग चूंकि एजुकेशन के आदमी हैं, हम लोग को पता होगा, जो लोग फ्यूचर एजुकेशन के लोग होंगे, आप में से जो जुड़े हुए होंगे, यू मस्ट बी अवेयर दैट गांधी जी's बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, बेसिक एजुकेशन philosophy, when in 1937 he came out with the idea that our indigenous education system should be based on, craft, based on craft. It was known as basic education or craft-based education, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा. So the education should be given to the children must be such which make them able to earn their livelihood. और 1937 का जो जमाना था, आजादी के पहले का जमाना है, 10 साल पहले का, जबकि हिंदुस्तानी बच्चे स्कूलों में बहुत कम जाते थे पढ़ने के लिए, जो जाते थे वो दूसरी पर तीसरी चौथी पांचवी करके छोड़ जाते थे। गुर्बती बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, लोग मजदूर ज्यादा थे, किसान ज्यादा थे, खेतों में काम करते थे। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज तो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे कि उनके यहाँ काम कर सके, उनकी सर्विस कर सके। गांधी जी का आइडिया था कि नहीं, हम अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसे हो कि बच्चा अगर 5वीं क्लास करके भी स्कूल छोड़ के अगर जा रहा हो, जो वहां का कॉमन एक प्रैक्टिस थी, जनरल फीचर था उस जमाने के स्कूलिंग का। 10वीं क्लास तक तो पहुंच नहीं पाते थे लोग, एक्सेप्शनली कुछ लोग पहुंचते थे। तो गांधी जी का मानना था कि 5वीं करके चला जाए, 6ठी करके चला जाए, 4थी करके चला जाए, तो इसको पहली से लेकर के 4थी 5वीं क्लास तक एजुकेशन के साथ साथ कुछ क्राफ्ट सिखा दो, कुछ कौशल सिखा दो, कुछ हुनर सिखा दो, जिससे कि स्कूल छोड़ के भी चला जाए तो कुछ न कुछ काम करके अपना जीविकोपार्जन कर ले, कुछ अर्न कर ले, लाइवलीहुड अर्न कर ले अपना और अपने बाल बच्चों और अपने माता पिता को खिला पिला सके। कोई बुक बाइंडिंग सिखा दो, पोल्ट्री फार्म का काम करने का सिखा दो, कुछ पेपर क्राफ्ट सिखा दो, टाई एंड डाई वगैरह का कुछ काम सिखा दो, कुछ ना कुछ कला सिखा दो, कुछ ना कुछ क्राफ्ट सिखा दो, कुछ ना कुछ हुनर सिखा दो। ये फिलॉसफी तब 1937 की थी। हालांकि बुनियादी तालीम शुरू हुई, बेसिक एजुकेशन शुरू हुआ, उसके लिए खास तौर पर स्पेशल टीचर तैयार किए गए जो बच्चों को अंग्रेजी, मैथ, साइंस, हिंदी के साथ साथ कुछ न कुछ क्राफ्ट सिखा सके। उसके लिए टीचर ट्रेनिंग एस्टेब्लिश हुआ जामिया के अंदर। जाकिर हुसैन उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जाकिर हुसैन ने जिम्मेदारी ली थी कि हम ऐसे टीचर प्रोड्यूस करेंगे और जामिया में शुरू हुआ। लेकिन 8-10 साल के बाद वो ऑलमोस्ट एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि उनको बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि हम बच्चों को, क्योंकि ज्यादा गरीब बच्चे आते नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी, वगैरह बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से वो फेल हुआ। लेकिन the philosophy still persists in today's scenario. That particular philosophy is still functional, is still live, is still useful in today's scenario. Then whosoever comes to education at school level and higher education, all these product of education at all levels must be developed and created and nurtured in such a way that they become a great earner, that they are enabled to earn livelihood, that they are enabled to earn a job, that they are enabled to create a job in the present philosophical scenario. जहाँ कहते हैं स्टार्टअप शुरू करो, अपना काम शुरू करो। जाहिर सी बात है, अपना काम शुरू करवाना है तो आपको कुछ न कुछ उस तरह की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल डेवलप कीजिए आप।
उसको पूंजी देनी पड़ेगी, उसको कैपिटल देना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, स्पेस देना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। तो बहरहाल आई ट्राई टू से that these 5 most important roles, that is acculturating role, combative role, liberating role, integrative role, and economic role, these 5 roles are very important, personally, in my opinion. And if any education system do not achieve these roles, do not fulfill these roles, or lag in fulfilling these roles, there is some problem with education system. And so, we as a policymaker and implementers of the policy at all levels of education, we must think critically on this issue. And we must take all these points into our mind at all levels, in our day-to-day activities, in our day-to-day curriculum transaction at classroom level and at school level, at university level. और अगर इसमें हमें लग रहा है कहीं प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने की जरूरत है। Now we come to the higher education part of national education policy. You must be aware that part 2 of the national education policy talks about higher education, focuses on higher education, which starts from chapter 9 and ends at chapter 19. So 10 chapters are devoted to higher education, which is very beautifully written, very critically analyzed the current scenario. And having critically analyzed the current scenario, the current status, beautifully depicted the problems also and how these problems can be sorted out. Everything is there in detail. Now the big question is how to implement all these policies. This is the question, and work has already started to implement all those things. Let's see what happens. So I'm going to talk about some of the pertinent points in all these chapters as far as possible in these, 1.5 hours. So as far as the quality university and colleges are concerned, the first chapter, chapter 9 on higher education, talks about quality universities and quality colleges. So national education policy talks about in its first chapter that we need to create, we need to develop, we need to establish quality universities and quality colleges. Means that universities and the colleges in which quality higher education is provided to the learners. And it is a kind of, new and forward-looking vision for India's higher education system. Now how to do this? How government can do this? And how teacher can, contribute in its achievement? Of course, the major part is to be done by the government, not by the teachers, because teachers' role start when the university and the colleges are established, and those colleges and universities which are already established and teachers are working in those colleges, then the teacher must have to work to uplift the quality of education in their endeavors. So we all are teachers sitting here in this debate and discussion, and we all have to play our own role. So let's see some of the pertinent points. It talks about the quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded, and creative individuals. Now, when we talk about the role of teacher, this is purely the role of teacher. Teachers are supposed to play the role through which we can produce thoughtful learners. So merely delivering lecture in the classroom, or giving class notes cannot create a thoughtful learner, cannot create a well-rounded personality of the learners, and cannot develop and nurture creativity among the children, among the learners, among the young generation. So for having learners with thoughtful personality, well-rounded or all-round developed personality, and having creativity in their personality, we need to translate the curriculum in such a way where they are given the opportunity to think critically, and given the opportunity to solve problems on their own, where teacher act as a facilitator, where students are given the opportunity to create something new.
and if not something new in the form of material, then at least create some innovative ideas. So this creativity can be at the stage of ideas or can be at the stage of some product in the form of project report or in the form of a commodity. Anyway, we as a faculty member need to transact the curriculum in such a way wherein we involve the learners in so many diverse activities through diverse ways, so that they can be converted into a thinking human being, a creative human being, having developed all aspects of personality, be it a cognitive domain or affective domain, the emotions and the ethics, or psychomotor domain, the skills to do some work, the skills to do some activity. This is the under the purview of the teacher to act upon. Now, it must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence. Of course, if the first point teachers can do in a better way in the universities and colleges, the second automatically will be able to receive. The third one is very, very important. Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation, thereby contributing to a growing national economy. Now, it is a very simple sentence, but as a faculty member, all of us can think what we can do at this juncture, at this point of time. Universities are not the place where knowledge is transferred from teacher to the learner. Universities are the place where knowledge is created. So knowledge creation is the most important task of the university, rather than providing degree and teaching the learners in the classroom. Just transfer of knowledge, no. Transfer of knowledge, teaching in the classroom, working on the projects with the learners are of course important, but much more important is creation of knowledge. Knowledge creation, which requires innovation. And when we create knowledge by different sort of research work and innovation, we can, bring economic change as well. We can grow national economy as well, because research is the mother of all development. The more research is conducted, the more new things are produced in terms of ideas or communities or material things, and the more you are in a position, the country is in a position to invite other countries for purchasing those commodities, if you are of that kind. नहीं तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा दूसरे मुल्कों से, जैसे हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस के जमाने में बनाया, वैक्सीन बनी कोविशील्ड एंड, है ना, और पूरी दुनिया को दिया। एक काम हुआ इनोवेशन का, रिसर्च वाज इन्वॉल्व्ड। तो हर फील्ड में, अमेरिका में, जापान में किया, साउथ कोरिया है, चाइना है, why they are so developed? Because the research is very strong. In this European countries, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ? उसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया पर हुकूमत किया इंग्लैंड, क्योंकि नॉलेज को क्रिएट किया था। जिस जमाने में और दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से में नॉलेज था ही नहीं, उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का इंग्लैंड के अंदर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हुआ नॉलेज की वजह से हुआ, नॉलेज क्रिएशन की वजह से। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया उस तरफ देखती है जहां नॉलेज होता है। नॉलेज के लिए भी देखते हैं और चीजों के लिए भी देखते हैं, आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। वो चीज बनना है, जाहिर सी बात है उसके लिए फैकल्टी को करना पड़ेगा। हमारे IITians को करते हैं, और ये नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में तो ज्यादा रिसर्च नहीं होता है, लेकिन IIT और IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में रिसर्च हमारे यहाँ काफी, लेकिन उसको और ज्यादा बेहतर करने की। नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी itself points out some of the major problems currently faced by the higher education system in India. तो क्या क्या है? खुद कह रही है, a rigid separation of disciplines with early specialization and a streaming of students into narrow areas of study. 10th के बाद 11th पे चले गए, 11th में साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, ये कह रहे हैं। अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और आर्ट्स के अंदर भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, बॉटनी, जूलॉजी हो गया, और
इस तरह से ये चीज। फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई है स्कूल लेवल पे भी, हायर एजुकेशन में टोटल फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर सपोज्ड टू बी गिवन टू द लर्नर wherein they can choose whatever subject they want to study as per their interest they can study। ये पूरा मौका दिया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, है स्कूल लेवल पे भी, हायर एजुकेशन पे भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूसरी बात करूंगा, आफ्टर इफेक्ट्स का आपके बारे में सोचा नहीं गया। कपिल सिब्बल के जमाने में मुझे याद आता है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और पूरा का पूरा ढांचा बदल गया। 4 साल के बीए के अंदर, बीएससी के अंदर बच्चों ने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिया कि उनका फ्यूचर स्टेक पे है आज के दिन। तो आज तक समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ये प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोगों ने इसको महसूस किया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया। आई हैव बीन देयर इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 15 years I've been there, and for the last 6, 7, 8 years we have been facing this problem। बच्चा बीएड करने के लिए आ रहा है हमारे एडमिशन के लिए, एंट्रेंस टेस्ट दिया, क्वालिफाई भी कर गया, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका अच्छा नहीं। वो बनना चाहता है पीजीटी फिजिक्स, उसके साथ हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा सब्जेक्ट बन ही नहीं पाता, पढ़ाई नहीं स्कूल में उस अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। बीएड कर भी लेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, वो एक प्रॉब्लम है। वो एक दूसरा इशू है कि आपने बीएड तो कर लिया, चलो भाई आप सेकंड सब्जेक्ट मिल गया आपको, लेकिन वहाँ डीएसएसबी या दूसरे स्टेट के बोर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसीज है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहता है कि टीजीटी बनने के लिए आपको टीजीटी साइंस या टीजीटी सोशल साइंस, आपके बीए में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, इन 5 में से 2 पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब वो 2 तो है नहीं, बीएड आपने कर लिया है। वो 2 क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी थी, उस बच्चे को मालूम नहीं था, उसको तो मालूम नहीं था। तो पॉलिसी बनाने में इन सारी चीजों को एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ करना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन इट मस्ट बी वेलकम विद सर्टेन लिमिटेशन आल्सो, इट शुड नॉट बी ओपन एंडेड। मैं अभी एनसीईआरटी के साथ एक मीटिंग में था, लेवल पे भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब वहां बच्चा क्लास 11th में जाता है और मान लीजिए वो साइंस पढ़ रहा है, और इन साइंस कहता है फिजिक्स तो ठीक है लेकिन मैथ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ेंगे और साथ में मैथ की जगह कंप्यूटर ले लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, आजादी है, ले। लेकिन क्या उसे आईआईटी में बैठने देंगे आप एंट्रेंस टेस्ट में? क्या आपने सोचा इस बात पे? उस बच्चे के लिए फॉर द टाइम बिंग तो अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी दी, लेकिन फ्यूचर स्टेप पे चला गया उसको, तो क्या करेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को छोड़ करके तो उसने दूसरा स्ट्रीम, जबकि उसने ये नहीं जाना था कि हमको बैठे नहीं दिया जाए। उसी तरह से कोई बच्चा कहता है फिजिक्स बहुत मुश्किल है, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री ले लिया, बॉटनी ले लिया और जो है जूलॉजी और मैथ लेकर फिजिक्स छोड़ दिया, क्या उसे नीट में बैठने देंगे आप? नीट का एग्जाम मेडिकल के लिए एमबीबीएस पढ़ना चाहता है लेकिन फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज गुड, but it must be within certain limits, and the policy making individuals, policy making bodies and the other organizations involved in in the development of eligibility criteria for different kind of courses and different kinds of job opportunities must sit together, and in coordination they should develop the extent of flexibility and the possible combination of subjects so that the new generation do not face any challenge, any threat at any stage of their career. डार्क नहीं छोड़ना चाहिए। अभी प्रॉब्लम है, बच्चे डार्क, हम just 2 days before I was there sitting in the interview, some of the students came for BA program after doing Bachelor of Engineering, after doing Bachelor of Technology, after doing BE Electronics। BE Electronics क्या है? फिजिक्स नहीं पढ़ा उसने,
फिजिक्स का पार्ट पढ़ा है, फिजिक्स का पार्ट पढ़ा, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स नहीं पढ़ा उसको। अब वो पढ़ाएगा जाके स्कूल में फिजिक्स 11th 12th में, नौकरी देगी नहीं गवर्नमेंट इसको, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि पीजीटी लेक्चरर इन फिजिक्स बनने के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपके पास एमएससी फिजिक्स होना चाहिए। वहां वो नहीं लेंगे, बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए कहते हैं, वो नहीं लेंगे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसका बीएड बेकार हो जाए। सो देयर इज ए नीड टू हैव ए गुड थॉट, coordinated thought on this issue, and so that these students do not face any challenge, any threat in future, and their career is not spoiled. This is very important. Now the second point, the problem which we are facing at higher education, which the policy itself say, limited teacher and institutional autonomy. ठीक है, टीचर की प्रॉब्लम तो है ही, we all know दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई है और बहुत सारे मेरे ख्याल में 600-700 पोस्ट खाली पड़े हैं। जामिया के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन 150 पोस्ट खाली पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मैं हमारे एचआरडी में एजुकेशन मिनिस्टर जब ज्वाइन किए थे तो उन्होंने सारी यूनिवर्सिटी का निकाला था पूरा कितनी पोस्ट खाली है। हर यूनिवर्सिटी का आया था, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 300, कहीं 400, इस तरह से पोस्ट खाली हैं। तो लिमिटेड टीचर तो है, तो इसको फुलफिल करने के लिए बहुत जल्दी वैकेंसी निकाल करके और अपॉइंटमेंट करना चाहिए, है ना। जब आपको समझ में आ गई ये बात तो उसको आप जल्दी से आप उसको अपॉइंटमेंट कीजिए, ताकि टीचर हमारे पास प्लेंटी इन नंबर हो, जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हो, तभी तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से कर पाएंगे, और तभी तो टीचर अपना रोल प्ले कर पाएगा, फैकल्टी अपना रोल प्ले कर पाएगा। और ऑटोनोमी की बात भी, यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस करने की बात पॉलिसी कहती है ना। यूनिवर्सिटी तो बहरहाल ऑटोनोमी को एंजॉय करती रही है ना, और हो सकता है करती रहेगी, प्रोवाइडेड कि अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अब बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात भी चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होगा, हर यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो चैप्टर 10 में मेरे ख्याल में चैप्टर 18 या 19 में बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन के चैप्टर 19 में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गवर्न द होल यूनिवर्सिटी, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो अभी सबसे हाईएस्ट बॉडी है किसी यूनिवर्सिटी में, जो पूरी यूनिवर्सिटी को चलाती है, हाईएस्ट बॉडी, उससे भी ऊपर एक बॉडी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, जो वाइस चांसलर से लेकर के साथ तमाम टीचर्स होगा, यानी कि इसी का रोल पीछे चला जाएगा, बैक बेंच पे चला जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल सबसे ऊपर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन लोग होंगे वो अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट तो होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर के कितने होंगे, अब बाहर के कितने होंगे, ये अभी पता नहीं है। ये पता जब क्लियर होगा तो फिर आपको तय करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू फाइंड आउट कि ऑटोनोमी आज बेहतर है या ऑटोनोमी कल बेहतर है। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग अगर जाते होंगे, अब वही डीसी को भी अपॉइंट करेंगे, टीचर्स को भी अपॉइंट करेंगे। जब वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जब यूनिवर्सिटी कंट्रोल होगा तो फिर देखने की बात हो, तो बाद में पता चलेगा कि ऑटोनोमी आपकी बची रहती है या ऑटोनोमी को कोई थ्रेट आता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉलिसी कहती है कि हमें इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी को मेंटेन करना है, बरकरार रखना है, ये चीज। The next point is inadequate mechanism for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders. ये तो काम होता ही रहता है। Then lesser emphasis on research at most universities and colleges and lack of competitive peer review research funding across disciplines. ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Lesser emphasis on research, ठीक है, रिसर्च पे काम, जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर रिसर्च बहुत होती है। एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कम हो रही है, जहाँ पर हम बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं। एकेडमिक यूनिवर्सिटी जैसे जामिया है या आईपी यूनिवर्सिटी है ना, जेएनयू वगैरह है, एकेडमिक यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी रिसर्च, बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोग, आईआईएससी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये सब रिसर्च कराते हैं, वो उनका एरिया। लेकिन अब कोशिश ये है कि जो हमारी एकेडमिक यूनिवर्सिटीज भी है वो भी जो है रिसर्च को काम में आगे बढ़े। और रिसर्च में भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो खासतौर पर जो पीएचडी लेवल की रिसर्च होती है उसमें अपने आप में बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है कि रिसर्च का हमारा लेवल क्या है। आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्चेस हो रही है, तो आप सबको अंदाजा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रिसर्च कैसे कराती है, एग्जामिनर कैसे अपॉइंट करती है, थीसिस कैसी आती है, कैसे उसका असेसमेंट होता है, कैसे उसका इवैल्यूएशन वगैरह होता है। ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक और इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम की बात, इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, चाहे वो एआईसीटी की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हम लोग टीचर एजुकेशन वाले लोग हैं, वी आर फ्रॉम
to education department. So we are having the case of NCT, National Council of Teacher Education. जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों को पता होगी, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि मोर देन 10,000 बीए कॉलेजेस हिंदुस्तान के अंदर है ना, जो स्टैंड एलोन कॉलेजेस हैं, अकेले सिर्फ बीएड कराते हैं, और ये सारे के सारे जो है बिल्कुल ही वाहियात और बेकार है ना। ये सब जो डिग्री बांट रहे हैं, ये टीचर ट्रेन नहीं कर रहे हैं, टीचर तैयार नहीं कर रहे हैं, ये बीएड की डिग्रियां बांट रहे हैं जहां क्लासेस भी ठीक से नहीं होती। ये बिल्कुल ही जो है डिग्रेडेड क्वालिटी। और उन्होंने कहा था कि सबको बंद कर देना चाहिए और रेगुलेटरी बॉडी को क्वालिटी पर फोकस करना, वो सारी की सारी चीजें हैं। ये सारे के सारे मसले दूसरे बॉडी के साथ भी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी मसला। आजकल मेडिकल कॉलेज बहुत खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज, आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज के भी बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, है ना, और कैसे उनका एफिलिएशन होता है, कैसे उनका एक्रेडिटेशन होता है ना, वो सब वी ऑल नो दैट, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, उस पर भी काम करने की खास ज़रूरत है कि जो हमारी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, वो बहुत ही ये ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम। Then the policy's vision includes the following key changes to the current system. More multidisciplinary undergraduate education की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी का जमाना है, उसका फोकस बहुत ज़्यादा है। Revamping curriculum, pedagogy, assessment and student support for enhanced student experience. ये बेसिकली फैकल्टी से रिलेटेड है, हम लोगों से रिलेटेड, ये हमारा आइडिया है। प्योर फैकल्टी जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, he as a faculty member has to play crucial role, an active role to revamp our curriculum, to redesign our curriculum, redesign our pedagogy, redesign our assessment strategies, and redesign our student support system for better achievement on the part of the learners, for better performance and on the part of the whole education system. ये टीचर का हाथ में है, ये टीचर कर सकता है, टीचर को करना चाहिए। हमें दरअसल होना ही चाहिए कि हम हमेशा फिक्रमंद रहें इस बात के लिए कि हमारी टीचिंग कैसी है, हमारा रिसर्च कैसा है, हमारा असेसमेंट कैसा है, हमारी पेडागोजी कैसी है। हम उन सब पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करते रहना चाहिए लगातार, है ना, लगातार। Then establishment of National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seek research in universities and colleges. National Research Foundation के भी अलग चैप्टर है, यहाँ पर तो इशारा किया है, लेकिन चैप्टर 18 में ये NRF पर डिटेल बात है जो कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के इरादे में है, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश होगा और उसके तहत तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूशन उसके तहत काम करेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे, और उस पर फंडिंग भी होगी और सीड मनी भी देंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी देंगे और इदारों को देंगे, सारी बात करेंगे। Then there is the governance of higher education system by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy. तो हमने अभी कुछ देर पहले ही जिक्र किया था, वही चीज है। रोल ऑफ ईसी क्या होगा, ईसी का रोल कहाँ पहुंचेगा। I have already pointed out, so I will not give some light on this at this point. Then light but tight regulation by single regulator for higher education. हायर एजुकेशन का एक सिंगल रेगुलेटर होगा, ये भी एक अलग फुल चैप्टर है इसके ऊपर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, है ना, हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया होगा। उसके तहत में ये सारे के सारे बॉडीज आ जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज जो है, यूजीसी भी उसके अंदर में आ जाएगा, एनसीटी उसके अंदर में आ जाएगा, एआईसीटी उसके अंदर में आ जाएगा, एमसीआई उसके अंदर में आ जाएगा। यानी कि अब सिंगल कंट्रोलिंग बॉडी होगी, सिंगल कंट्रोलिंग बॉडी होगी जो ऊपर से कंट्रोल कर रही होगी पूरी तरीके से। हाँ, तो जब सिंगल कंट्रोलिंग बॉडी ऊपर से कंट्रोल कर रही है, आपको कहने के लिए तो लाइट बट टाइट है, लेकिन है सिंगल एंड सिंगल बॉडी, तो ऑटोनॉमी हमें लगता है कि शायद ऑटोनॉमी अपने आप को ऑटोनॉमी को थ्रेट है, ऑटोनॉमी को खतरा हो। अब डिपेंड ये भी करता है कि वो बॉडी बनती कैसे है, जब स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा तो पता चलेगा। ये प्योरली गवर्नमेंट के हाथ में है, फैकल्टी तो खैर इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर फैकल्टी का काम, रोल फैकल्टी को प्ले करना चाहिए। हम अपने 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 आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं हायर एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को आसान करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। इंक्रीज्ड एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन थ्रू ए रेंज ऑफ मेजर्स including greater opportunities for outstanding public education, scholarship by private philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students. ये तो वो दूसरी चीज होगी कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलेगी, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम
को भी स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ पर जो बात है ऑनलाइन एजुकेशन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ पर फैकल्टी बहुत सारा काम कर सकते हैं, फैकल्टी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं और यहाँ पर अपना इनपुट दे करके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे आजकल मूक्स पे काम चल रहा है, स्वयं प्रभा चैनल है, IIT बहुत सारे जो है उनको बना दिया है, नोडल एजेंसी बना दिया गया है। आप ऑनलाइन कोर्स डेवलप कीजिए और उसको आप लॉन्च कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटी के बीच में MOU साइन करवाइए और फिर पूरे देश के बच्चों को पढ़ा सकते, बल्कि देश के बाहर भी बच्चों को। तो इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है और ये मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा हथियार होगा एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए, खासतौर पर हायर एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन की बात जो अभी आई थी, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, वही बात यहाँ है। इस्टेब्लिशिंग लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इस्टेब्लिश होगा। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनेगी। ये 3 तरह के, ये 4-5 तरह के इदारे अब होने वाले हैं। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जहाँ का इक्वल इम्फेसिस होगा ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। दूसरे तरह की यूनिवर्सिटी होगी जो होगी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर की प्लेस ग्रेटर इम्फेसिस ऑन टीचिंग बट स्टिल कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च। जैसे हम लोग IP यूनिवर्सिटी है, जामिया है, मेन काम मेरा टीचिंग है, रिसर्च जो है वो सेकेंडरी है आज की। ये कह रहे हैं ग्रेटर इम्फेसिस होगा, लेकिन जो रिसर्च सेंट्रिक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होगी वहाँ मेन काम रिसर्च होगा, मेन फोकस रिसर्च पर, लेकिन टीचिंग नहीं। तीसरे तरह का इदारा होगा ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, जैसे आपने सुना होगा सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस की डिमांड कर रही है। ऑटोनोमस जो है कॉलेज पूरी तरह से डिग्री पे अपना खुद डिमांड करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर काम न करते, ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और फिर अपना प्रोफेशन पर चल रहा है, मेरे ख्याल में काफी हद तक शायद वो भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस अटैच टू ए यूनिवर्सिटी, ये तो खैर पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। एक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी कैटेगरी में है, जो जिसके साथ सैकड़ों कॉलेजेस हैं। और इन सब के जरिए पर्पस ये है और टारगेट ये है कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि 26.3% है 2018 के हिसाब से, उसको 50% तक ले जाना है बाय 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि टोटल एडमिशन इन हायर एजुकेशन divided by total number of eligible candidates, eligible citizen who should be in the higher education, which is तकरीबन 23 से लेकर 28 साल की, 18 से लेकर 23 साल की एज ग्रुप का यहाँ पर होता है। 18 से 23 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए, इसका जो रेशियो है दैट इज GER। तो वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत कम है, उसको बढ़ाने की बात चल रही है। तो उसको बढ़ाए, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, इनटेक को बढ़ाएंगे आप, वो सारा का सारा। देन हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये हमारा रोल है, ये टीचर का तो बात हम अभी कर रहे हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, ये हमारा रोल हो सकता है। आप if you want to contribute in the implementation of national education policy as a teacher, as a faculty, then we have to work here. We have to conduct high quality teaching in our classrooms with our students, and we have to conduct high quality research. And as a teacher, as a faculty, as a project director, as a project coordinator, and we have to involve our learners in the community engagement, in the outreach activities. So we have to develop a link between our departments and colleges and universities and the community. So community को engage करना है, हमारे कॉलेज के, हमारे क्लास के, हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ, यानी कि बच्चों को कम्युनिटी में भेजना, कम्युनिटी के लोगों को अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर लाना, ताकि कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी बढ़े, डेवलप हो और वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भेजे। तो उस तरह से उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, एक शौक बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो बच्चों को लेकर आएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। और जब बच्चे हमारे जाएंगे उन कम्युनिटी में जाकर कुछ ना कुछ काम करें, कभी कोई सर्वे करें, कभी कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, है ना, कभी कुछ इस तरह के जो है अवेयरनेस एक्टिविटीज में एंगेज हों, हेल्थ अवेयरनेस हो, एजुकेशन अवेयरनेस हो, गर्ल चाइल्ड अवेयरनेस हो, उनके जो राइट एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन हो, और इस तरह से एम्पावरमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन अनमार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी हो। इस तरह के लोगों के लिए काम जब करें तो उन्हें लगेगा कि वाकई जो है हमारा यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ये पर्पस है दरअसल इसको बढ़ाने के लिए। यहाँ हम लोग हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज की जो बात अभी मैंने की थी, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अभी बहुत सारा काम हो रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों में जो कोरोना के
पेंडेमिक का दौर था, जब अभी भी यूनिवर्सिटी तो बंदी है हमारी, तो इसमें ऑनलाइन में सारा काम हुआ, मूक्स बहुत बूस्ट हुआ है ना, बहुत बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स जो है ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं, और खासतौर पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में MOU साइन हुआ जो मूक्स को डेवलप कर रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को। और एक तरह से टास्क है जो एक तरह से CBCS का जो सिस्टम था विद इन द यूनिवर्सिटी था, अब ये आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी चला कि बच्चा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का JNU से अगर रिसर्च के मेथड पे कोई, अगर जामिया में कोई बच्चा पढ़ रहा है, MA कर रहा है या MSc कर रहा है और कोई पेपर उसका JNU में भी है, अब मूक्स पे अवेलेबल है, तो जामिया से न करके वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है JNU वाला या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का, और ट्रांसफर हो जाकर क्रेडिट उसका, तो ये पूरा का पूरा होगा। तो अच्छी क्वालिटी का जो टीचिंग मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का जो वीडियोस है, अच्छे और रिनाउंड टीचर से देश की जो है किसी भी हिस्से में बैठा बच्चा एक्सेस कर सकता है, उससे अपनी तालीम ले सकता है, उससे पढ़ सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके पास जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हो। बहरहाल तो ये टीचर, हर यूनिवर्सिटी के टीचर, हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में, जो पेपर हम पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट में, अपने पेपर्स में जो पेपर पढ़ाते हो, जिस भी लेवल पे, UG लेवल हो, PG लेवल हो, मूक्स डेवलप करें और प्रॉपर तरीके से उसको जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रॉपर तरीका है डेवलप करें और उसको फिर उसको ऑनलाइन चलाएं। तो इससे फैकल्टी डेवलपमेंट भी होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा, और जो है खासतौर पे जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, है ना, रिमोट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको एक्सेस मिलेगा क्वालिटी कंटेंट और उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, उनकी क्वालिटी जो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो देश की क्वालिटी, देश आगे। अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए CEC कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये एक UGC की बॉडी है, वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। जो लोग नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हैं, जैसे BA सोशियोलॉजी करा रहे हैं, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, इस तरह के जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह है, इस तरह के बॉटनी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये रिसर्च वगैरह के पेपर्स हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, इन पर अगर मूक्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इस बॉडी के साथ आपको जो है जुड़ना पड़ेगा। जाके इनके साइट पे जाकर के देखिए और देख करके देखिए कि क्या उनका कंडीशन है, क्या परफॉर्मा है। फॉर्म भरना पड़ता है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू द रजिस्ट्रार, और फिर वो सैंपल मांगेंगे, एक्सेप्ट होगा, फिर आप डेवलप करें, पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका। उसी तरह से टीचर एजुकेशन में है NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, यहाँ इनको एक्सेस करना पड़ेगा। टेक्निकल कोर्सेज के लिए AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोर्सेज में IIM बैंगलोर नोडल एजेंसी है, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रही है। तो इस तरह से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। देन टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो है आपका एजुकेशन के लिए सारी की सारी चीजें हैं। असल होना ये चाहिए, है ना, होलिस्टिक की बात हम तो हमेशा से करते आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम होलिस्टिक होना चाहिए। 64 की पॉलिसी ने भी कहा, 86 की पॉलिसी में ने कहा, 2020 की पॉलिसी भी कह रहा है कि होलिस्टिक हो, मल्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। लोक आर्ट एंड क्राफ्ट, लोक कला को पर ध्यान देना चाहिए और उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। लिबरल आर्ट्स बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। बुनियादी चीज जो खास तौर पे which I wanted to point out, वो जरूरी है कि सिर्फ we should not develop policy without understanding the need of this current society। एक अमेरिका में शुरू हुआ था जीरो बेस्ड बजटिंग की बात, जीरो बेस्ड बजटिंग, तो इकोनॉमिक्स के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे पिछले साल हमारा बजट कितना था और किस एरिया में कितना खर्चा किया। आज हमारी जरूरत क्या है 2021 में, व्हाट इज द नीड ऑफ आवर सोसाइटी इन 2021, व्हाट आर द नीड्स ऑफ आवर यंग जनरेशन, आवर चिल्ड्रन, आवर एडोलेसेंट्स, आवर यंग माइंड्स, आवर एडल्ट्स, आवर एंटरप्रेन्योर्स, our farmers. In current scenario, what are the skills required to be developed in the young generation in 2021? What are the competencies which are required to be developed in the young generation in 2021 so that they can compete with the world? आज की जो जरूरत है, आज की जो नीड है, उसके हिसाब से कहते हैं ना, नीड एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से करिकुलम को डिजाइन कीजिए, उसके हिसाब से प्रोग्राम को चॉक आउट कीजिए, कौन सा प्रोग्राम पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए BA में, BSc में, BCom में, मास्टर्स लेवल पे,
कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करें और डिफरेंट प्रोग्राम से में कौन कौन से कोर्सेज हों, कौन कौन से पेपर, इसके बेस पर नीड बेस्ड, किसी और दूसरी वजह के बना पे फॉर एनी सर्टन अदर रीजंस किसी सब्जेक्ट को, किसी कोर्स को पढ़ाना या किसी कोर्स को एलिमिनेट करना, अगर फॉर अदर रीजंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द नेशन एट लार्ज। वो जरूरी है, उस पर फोकस करना चाहिए। देन इसको मैं छोड़ देता हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज को जोड़ करके देखने की बात की जा रही है ना। ठीक है, बहुत जरूरी है, देखना चाहिए बिल्कुल, जाहिर सी बात है साइंस सोसाइटी के लिए काम करता है और सोसाइटी साइंस के लिए काम करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग नहीं देख सकते। साइंस हमेशा से सोसाइटी के लिए काम किया, सोसाइटी को ही बेहतर बनाने के लिए, उनके लाइफ को बेहतर करने के लिए, जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की चीजें बनाता रहा है, उनके लाइफ को आसान किया, लाइफ को आसान किया साइंस। जाहिर सी बात है कि साइंस पढ़ने के लिए, साइंस के इदारे कायम करने के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी फंड जनरेट करती है, फंड देती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो बहरहाल दोनों एक दूसरे के हैं और जाहिर सी बात है वी मस्ट डेवलप ए good balance between all these subjects. So integration of humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics is of course very essential, and we should accept this and we should follow the same in our efforts. Now it also talk about value based education. कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे वो स्कूल का लेवल हो, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, खासकर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात, it has been discussed and it has been a central theme of discussion since long time, and there was a time when national value education cell was established in NCERT, and many papers were introduced at different levels of education on the name of value education. But it must be remembered that values are not taught, they are taught. अवतार जो हैं, मूल्य जो हैं, वो पढ़ाने से नहीं आते, वो जज किए जाते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जिस तरह के वैल्यू सिस्टम पर चर्चा हो रही होगी, जिस तरह के वैल्यूज पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे लोग, वो हमारे बच्चे एब्सॉर्ब करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम बेसिकली सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, किसी देश में ज्यादा है, किसी देश में कम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम जबानी तो बात करते हैं बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूज, लेकिन जो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसलिए एक गैप नजर आता है। और हमारी नई जनरेशन एक दुविधा में होती है, डायलेमा में होती है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो वैल्यूज आर समथिंग व्हिच नीड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल ऑफ अस, एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए फार्मर, एज ए हस्बैंड, एज वाइफ, एज सन्स, एज डॉटर्स, एज ए स्टूडेंट, as teaching, non-teaching staff in the universities and colleges, as member of the society, so that the new one, the young generation, the children, should observe those values, those practices which are being practiced by the members of the society, and in the process they will imbibe those values and they will start to follow them. This should be the way for developing the values. ये नहीं कि बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, और हम बात करते हैं सत्य और धर्म और शांति और प्रेम और अहिंसा, बात करें हम सब कुछ, और सिर्फ बात करें, हमारे जीवन में नहीं, वो प्रॉब्लम है। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। ये चीज Then multiple exit का एक पॉलिसी है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। And you must have heard कि 12th क्लास के बाद बच्चा जो है ग्रेजुएशन में दाखिल होगा, 1 साल पढ़ के निकल सकता है, 2 साल पढ़ के निकल सकता है, 3 साल पढ़ के निकल सकता है। So if one student gets out after 1 year, he or she will be given certificate. If he or she gets exit after 2 years, he or she will be given diploma certificate, and after 3 years will be given graduation certificate. After 4 years master certificate. Yeah, good, looks very good. लेकिन whether you have thought about what will be the fate of those who
एक एग्जिट आफ्टर 1 ईयर, सर्टिफिकेट करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, उसका 4 साल के बाद फिर क्या होगा। कहते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा और वो फिर बाद में उसको पूरा करना चाहेगा, पूरा कर देगा, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। इन चीजों को थोड़ा सा एक बार, देयर इज अ नीड टू हैव well thought discussion and deliberation, and we should think about the future of those young ones who will exit after 1 year or 2 year, and about their career aspirations, है ना। वो चीज, उस चीजों को, उन चीजों पर थोड़ा सा गौर करेगा तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और इसके लिए क्या है हमारे यहाँ, फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन बाय सेटिंग अप स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। ये हमारे जामिया में भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। आई हैव नो आइडिया अबाउट आईपी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। CIE, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो बात अभी पहले की भाई थिंकिंग और क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है ना। उसके लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इनोवेटिव बच्चे हैं, जो अपने आइडियाज लेके आते हैं, चाहे वो BA प्रोग्राम कर रहा हो या BTech कर रहा हो, BE कर रहा हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हो, लैंग्वेज पढ़ रहा हो, एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर रहा हो, लेकिन अगर इनोवेटिव आइडियाज है उसके पास, वो लेकर के आता है और अपने सेंटर पर जाकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि हम ये मेरा ये आइडिया है। अगर वो अपील करता है तो यूनिवर्सिटी उसको फिर फंड देती है, सीट मनी देती है और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको मदद करती है। उसके लिए फिर विद इन CIE देयर आर 2 डिफरेंट सेंटर्स, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, उसके आइडिया को एक तरह से इंक्यूबेट करना, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है, और डिजाइन इनोवेशन सेंटर है जो उसके आइडियाज को जो है जनरेट करने में और उसको मल्टीप्लाई करने में और उसको फ्रूटफुल बनाने में और आगे उसको तक ले जाने में फैकल्टी का सपोर्ट होता है, एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे प्रोग्राम लंच जो है चलाए जाते हैं, ये सारे के सारे चीज़। देन देयर इज ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि फैकल्टी मेंबर का सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरी क्लास में हो, कॉलेज में, उनको मैक्सिमम जो है एकेडमिक सपोर्ट दें ताकि वो पूरी तरह से डेवलप कर पाएँ और अपना एजुकेशनल बेनिफिट्स ले पाएँ। CBCS उसी का पार्ट है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी ही है, जो कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जो उनको इंटरेस्ट लगता है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी 3 दिन पहले भी हमने एक बात की थी, जो टॉक दिया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की हैं कि CBCS जिस पर्पस के लिए लॉन्च हुआ था, शुरू किया गया था, शायद वो पर्पस बहुत ज़्यादा हद तक वो नहीं हो पा रहा है। टीचर को भी प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत सारी आ रही है। जैसा टीचर्स बताते हैं कि 6 महीने का होता है, CBCS एक सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें पता चला कि 4 महीना हो पाता है, ठीक से हो नहीं पाता है, एग्जाम ही होता रहता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है सेमेस्टर सिस्टम जो होता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है, हर यूनिवर्सिटी को बनाना है, कॉलेज को बनाना है। ODL की बात हमने की, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात, ये सब सारी चीज़ें। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी मेंबर, ये जाहिर सी बात है, ऐसा फैकल्टी को डेवलप करने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हर टीचर के अंदर पहले सेल्फ मोटिवेशन, जाहिर सी बात है कि अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में अगर दाखिल हो गए हैं, आप टीचर हो गए हैं, तो आपको अपनी ईमानदारी के साथ और कहते हैं लगन के साथ और जतन के साथ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करना है ना। तो मोटिवेटेड आपको रहना पड़ेगा, एनर्जाइज रहना पड़ेगा, और आपको कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए, अपग्रेड करने के लिए खुद लर्न करते रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। टीचर एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिंदगी भर लर्न करती रहती है। लर्निंग तो ऐसे किसान या मजदूर सबकी होती है पूरी जिंदगी, इनफॉर्मल लर्निंग, लेकिन टीचर की लर्निंग की जब बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमेशा नित नई चीज सीखता है। इसलिए कि जो बच्चा जिसको पढ़ा रहा है अपनी क्लास में, वो क्या पूछते पता नहीं, उसको क्या जरूरत पेश आ जाए आपको मालूम। तो अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लर्नर्स के लिए और अपने जो है देश के नौजवानों और नौनहालों के लिए आप टीचर को हमेशा अपडेट रहना है अपने एरियाज में, और सिर्फ अपने एरियाज में नहीं बल्कि अपने दूसरे एडजॉइनिंग एरियाज में भी, जिससे कि आप बच्चों को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये टीचर के लेवल पे है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को और सिस्टम को भी जरूरी है कि टीचर की नीड्स का और उसके एस्पिरेशंस का और उसके डिफिकल्टीज का, उसके इश्यूज का वो ख्याल करे, तभी वो टीचर जो है मोटिवेटेड रहेगा, एनर्जाइज। अगर सरकार, हुकूमत सो जाएगी, अगर आपके लिए नहीं सोचेगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वाइस वर्सा वाली बात होती है, टीचर भी डीमोटिवेट। तो सारी की सारी चीज़। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, ये एक अलग इशू है अपने आप में। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है
ये सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे यहाँ। और ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आ नहीं पाते, जो आना चाहते हैं वो भी नहीं आते। कॉलेज की भी कमी है, यूनिवर्सिटी की कमी है, और क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क है। क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चा तो देश का नहीं पढ़ सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो एक ही है, सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का एस्पिरेशन होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है। कितने बच्चों को एडमिशन देगी, कितने बच्चों को? बहुत सारे बच्चे तो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए यहाँ आ नहीं पाते, पैसा नहीं होता जी, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का पैसा नहीं होता। असली हिंदुस्तान को देखिए तो पता है। तो वो इस तरह के जो बच्चे हैं, टैलेंट वहां हो सकता है, इंटेलिजेंस वहां हो सकता है, कैपेबिलिटीज वहां हो सकती है, उन सारे बच्चों को, सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ईच एंड एवरी चाइल्ड so that they can excel and they can seize the opportunity provided to them and to excel in the field in which they can. ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना दरअसल यही इक्विटी है, उनको मौका देना। मौका दिया नहीं और इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो उसमें बेचारे को उनकी गलती नहीं, मौका मिला ही नहीं। तो हमको कम से कम मौका देना है। जाहिर सी बात है कि इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और हमारा रोल है। हमारी क्लास में जो बच्चा आ गया, सबको मौका देना है, सबको। इस बच्चा एज ए फैकल्टी मेंबर हम एक तो जहाँ भी रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करते रहें, इंस्पिरेशन उनको देते रहें, और जो बच्चा हमारे इदारे में आ चुका हो उसके साथ काम करें, उनको कभी किसी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना हो। वो सारी की सारी चीज़ें है ना, तो ये सारा का सारा है। टीचर एजुकेशन में खास तौर पे जब बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा कि स्कूल एजुकेशन को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, हायर एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकता। सो स्कूल एजुकेशन इज द फीडर फॉर हायर एजुकेशन। और इसलिए अब टीचर्स भी शिकायत कर रहे हैं हायर एजुकेशन के, कॉलेज के, कि बच्चे अच्छे आ नहीं रहे, स्कूल एजुकेशन में प्रॉब्लम है। स्कूल में टीचर शिकायत कर रहे हैं, 9th 10th को पढ़ाने वाले जो टीजीटी है सेकेंडरी लेवल पे, कहते हैं यार क्या करें, हमारा बच्चा जो मिडिल स्कूल से आता है वो अच्छा नहीं। मिडिल स्कूल वाला शिकायत कर रहा है कि प्राइमरी स्कूल से बच्चे ठीक से नहीं आते। यानी कि पूरा का पूरा फाउंडेशन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आसर की रिपोर्ट कहती है कि 8वीं क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास का सम नहीं कर सकता। 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको तीसरी क्लास की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लिखने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती। These are the issues. We all are aware about the issues and the problems being faced by school education in our country. We all are aware about the status of teachers and teaching learning process in our school system. जब तक कि स्कूल सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा, क्वालिटी उसके अंदर नहीं आएगी, जब तक हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को जो फीडर हम स्कूल पूरा सिस्टम है, हम नहीं भेजेंगे अच्छे बच्चे, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या करें, कितना काम करें, कितना काम करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने फाउंडेशन पर, अपनी बुनियाद पे काम करें। पूरा देश का बुनियाद पे काम। जिस बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी होती है, बिल्डिंग इमारत लंबी चलती है। बुनियाद कमजोर हो जाती है तो बिल्डिंग गिर जाती है। और इसलिए किसी फिलोसोफर ने कहा कि किसी देश को बर्बाद करना हो, तबाह करना हो, तो उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दो। खासतौर पर स्कूल शिक्षा को बर्बाद कर दो, जो कि फाउंडेशन है। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी फोकस कर रहा है टीचर एजुकेशन पे। चैप्टर 15 के अंदर के बीएड बहुत अच्छे से होंगे। टीचर ट्रेनिंग के जो कोर्सेज हैं, खासतौर पर जो डीएलएड है, बीएड है ना, जो बीएड के कॉलेज हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, उन सबको स्ट्रीमलाइन करने की बात की जा रही है ना। हालांकि इसमें भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे हम इश्यूज हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जो टीचर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। अभी कुछ देर बाद मैं बात करूंगा तो हो सकता है आप लोगों से फोन। हम लोगों ने 1 साल का बीएड में भी पढ़ाया है, और पिछले 2015 से लेकर के जो है अब तक 2 साल का बीएड पढ़ा रहे हैं। और कई बार जब पूछेंगे टीचर से तो आपको महसूस होगा, शायद कभी कभी ये लगता है कि 1 ईयर का बीएड जो था बहुत अच्छा था। उसका जो स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम था, हालांकि 1 महीने का था, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, फोकस था। ये 2 साल का होने के बाद प्रॉब्लम आ गई था। अब उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, ये देखने की बात।
तो बहरहाल ये अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि 2030 के बाद सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड रह जाएगा, यानी 12th करने के बाद आप सीधा सीधी दाखिला लीजिए। अगर टीचर बनना चाहते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए, बीएससी के साथ बीएड, बीए के साथ बीएड, बीकॉम के साथ बीएड कीजिए। आइडिया यह है कि हमें डेडिकेटेड टीचर चाहिए। We would be welcoming only those aspirants for B.Ed course who really want to become a teacher. जो टीचर बनना चाहते हैं हम उन्हीं को टीचर बनाएंगे। इसलिए 12th क्लास के लेवल पे आप फैसला कर लीजिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप, और साइंस में इंटरेस्ट, साइंस के टीचर है, साइंस में इंटरेस्ट है तो बीएससी बीएड कीजिए, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बीए बीएड कीजिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो बीकॉम बीएड कर लीजिए। आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। ये नहीं कि बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद आईएएस की तैयारी किया, पीसीएस की तैयारी किया, बैंक की तैयारी किया, रेलवे की तैयारी किया और कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कोई रास्ता नहीं है तो चलो भाई हरियाणा में फलाना कॉलेज है बीएड कर लेते हैं। यही हो रहा है पिछले कई सालों से। इसलिए वो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं जो वाकई टीचर बनना नहीं चाहते। टीचर बनना उनका सबसे आखिरी, समझ लीजिए कि पसंद है, लास्ट प्रायोरिटी। जाहिर सी बात है, जब प्रायोरिटी लास्ट है तो आपका एफर्ट भी तो वैसे ही होगा, आपकी कोशिशें वैसी होंगी, बच्चों के साथ अफेक्शन आपका वैसा ही होगा, बच्चों का दर्द भी वैसा ही होगा, बच्चों के साथ अटैचमेंट भी आपका वैसे ही उसी दर्जे का होगा। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो एक सिस्टम डेवलप हो गया है, इससे ओवरऑल एजुकेशन को नुकसान। और इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 2030 तक जो इस तरह के कॉलेजेस हैं तो सब अपना अपना 4 साल का इंटीग्रेटेड लॉन्च करने शुरू कर दें। तो है करिकुलम इस तरह का डेवलप होगा। एनसीटी से कहा गया है कि करिकुलम फ्रेमवर्क बनाइए आप इस तरह का, तो शायद बेहतर हो। जाहिर सी बात है कि जब आप उन्हीं लोगों को लेंगे, आप उन्हीं लोगों के लिए दरवाजा खोलेंगे आप स्कूल एजुकेशन का जो वाकई टीचर बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब पसंद आपकी है, आपको टीचिंग पसंद है, तो आप जाहिर सी बात है अच्छे से करें। तो बहरहाल ये चीजें हैं, आप देखिए आगे इसमें हम लोग क्या कर पाते हैं। तो उसके अलावा हालांकि दरवाजे थोड़ा सा उनके लिए भी खुले हैं जो बीएससी कर चुके हैं, वो करना चाहते हैं बीएड, अगर तो 2 साल का बीएड भी रहेगा। जो लोग एमएससी कर चुके हैं एक्सिक्यूटिव टाइप का भी, जैसे एमबीए होता है, वो 1 साल का बीएड भी रहेगा। लेकिन अब फाइनल क्या होता है ये देखने को मिलता है आने वाले 2-4 साल। ये सारी हमारे ख्याल में 4:53 हो गए हैं। और हायर एजुकेशन एक बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो सारी बातें हो नहीं सकती। मैं ये थोड़ी सी बात कर लूँ यहाँ पर। री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन की बात भी आपने कहा होगा कि वोकेशनल एजुकेशन जो पहले स्कूल का पार्ट हुआ करता था, 9th 10th के साथ 11th 12th तक था, अब उसको गवर्नमेंट ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हायर एजुकेशन तक उसको आगे बढ़ा दिया उसको। और इसलिए बढ़ाया है कि जो बात गांधी जी की फिलॉसफी की बात की थी वो यहाँ भी है कि आप प्रोफेशनलिज्म को डेवलप कीजिए, वोकेशनल स्किल्स को डेवलप कीजिए। और इसलिए जो है वोकेशनल एजुकेशन को आपका अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिया जाए, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि द यंग वंस विल बी एबल टू open their own vocations, open their own employment, create their own employment, and even they can also join different jobs as per their vocational choices, vocational interest, है ना। क्योंकि एक डाटा खुद एनईपी कहता है कि यूएसए जो है 52% अपने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन में डालता है, वहाँ जर्मनी में 75% है, साउथ कोरिया में 96% है, जबकि हिंदुस्तान में हमारा less than 5% बच्चे जाते हैं। तो इस पर भी बात करते हैं कि हमें करना है उस पर काम। हमारे ख्याल में थोड़ा सा आप में से कुछ लोग अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो, तो हम सोचते हैं कि मुझे ओपन करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया है। तो नाउ आई थैंक यू ऑल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर डिस्कशंस एंड deliberations. Thank you so much. Thank you so much, sir. Whenever you are taking the examples and you are telling the things, the discussion is already going on the chat box. Some are praising the sessions, some are agreeing with your point, and they are also saying we do agree, sir. So in that way,
that Nisha Saini, Preeti Saini, Dr. Rakesh, Dr. Akash Ranjan, they have already written that it was a very thoughtful session and very informative session. So participants, they are very much praising the session for the day. And on the behalf of University School of Education, I want to thank you, sir, for such an enlightening and delightful session. Sir, you suitably remarked that the purpose of education is the most significant, and you have illuminated us the role of the faculty in the effective implementation of national education policy in higher education in very effective way. And you have taken very nice and very practical examples to explain the major problems in the higher education system. And I think we all need to think about the consequences of the various flexibilities, and like we have to think about that what we can do in for the improvement in the higher education. Thank you once again, sir, for such a wonderful session. And on the behalf of all the participants and the University School of Education, we are grateful for the wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Anjali Madam. Thank you so much. ये बताइए कि is there any question from any participant? Sir, this is what I was, yes, there is a question by Dr. Umakant, and he is asking, how is the influence of bureaucracy on higher education institutions affecting their efficiency and efficacy? Is there any hope with the National Education Policy 2020 in this regard? So this is a question which is asked by Dr. Umakant Prasad. Dr. Umakant, it's a brilliant question, very good question. And as far as the relationship between bureaucracy and higher education is concerned, I think this is a very old problem in our country. And if Umakant, you can recall, there was a Sarkariya Commission which was established, almost 25 years ago, to study the relationship between the bureaucracy and higher education system, basically bureaucracy and the teachers of the higher education system. So this is chronic problem, and even today we can observe all these problems. When the pay commission comes after every 10 years, so in that particular pay commission, this particular relationship also reflects, where the scales of professors and the associate professor are still kept below the bureaucrats because of so many factors. And as far as the summer vacation and winter vacations are concerned, there is also some issue that the Ministry of Education or the bureaucrats have always been thinking about this particular issue, that why teachers are going for 2 months summer vacation or 1 month winter vacation and are getting so many benefits out of the government funds and so on. So the problem is, of course, very conventional type of problem is there, but national education policy do not have any say on this. And I think as far as this, some of the important policies, the provisions are there, like Board of Directors and Higher Education Commission of India, and certain such provisions would be augmenting but this particular type of relationship, and where the bureaucrats will always be having their upper hand in the entire system. I think so. Yeah, just muting myself. So there is one more question by Dr. Rakesh, Dr. Akash Ranjan, and he is asking, how will we develop the spark in teachers? Most of the teachers are psycho-fencing in nature in higher education system. दो बातें हैं राकेश जी, the first most important thing that especially in higher education, the other will not develop a spark in you or any teacher. We are at this level in higher education, especially we have to create our own spark. We should not wait for
any kind of spark from outside, है ना? वो तो हमें खुद अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि बाकी जो प्रोविजंस होती हैं, आपके जॉब कंडीशंस हैं, जॉब की जो जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन दरअसल कुछ कहते हैं देयर इज सम फिलॉसफी कि टीचर्स आर born, there are some teachers who are born and there are some teachers who are created। दो तरह की बात है, अलग अलग फिलॉसफी। some has believed that teachers are always born, they cannot be created, but there is another school of philosophy talks about that teachers can be created। But for me, I think really if you have born skills and if you have born a spark in you, you can always be a very effective and very brilliant teacher, है ना? So but many a times if you have very good environmental condition, school ecology you can say, or department ecology, or the university ecology is very important। So if we have a very cordial relation among our faculty members, and if we have academic environment in the department, if we have open environment in the department, if we sit together and discuss on various academic issues, share our ideas and learn from one another, and we develop this kind of attitude, then we can develop our spark in ourselves। Yes, thank you so much, sir. You rightly said that we need to do something for that. And Professor Sangeeta ma'am is also, she has also written in the chat box that it's a very informative session. Sangeeta ma'am, you can mute yourself. You are in the panelist. So you can on your video and you can speak also, ma'am. You have. Okay. Yes. Can you hear yes, me? Yes. Yes, ma'am. You are audible. Okay. जसीम साहब, बहुत informative session, बहुत informative था। तो थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। आदाब, मैं आपको आदाब करता हूँ पहले। जी। I recall that when you were head of the department, you called me for a session on research methodology। हाँ जी, वो ताज़ा कर दी यादें अंजलि मैम ने और धनंजय सर ने। थैंक यू सो मच मैडम। And I request all the panelists, Professor Sangeeta ma'am, Dr. Shalini Yadav, to put your videos on so that we can have the screenshot. Oh, you are Oh, Shalini. Never mind, ma'am. At least we can see you. Yeah. Sangeeta ma'am, can you put your video on? Another panelist. Okay. Everyone. Yes. Okay. So that we can have a pic with Jasim sir in online mode, sir. Oh, sure. Yeah. And we are very sorry for the participants because we are having the two different links. And of course, on the valedictory session, we will take the screenshot of all the participants. Thank you so much, Shalini madam, thank you so much। आदाब अर्ज़ है। आदाब, बहुत ही अच्छा लगा, चाहे ऑनलाइन ही दिखे, बहुत ही अच्छा लगा। Yes. Okay. Anjali, actually, big thanks to Anjali। Oh, it's on our collective efforts, ma'am. So, thank you so much, sir. Okay, thank you so much। Thank you so much. Oh, Sangeeta ma'am has come. Hello, ma'am. Hello, Anjali ma'am. Oh, I could enable, yes. Thank you. Yeah, ma'am. Because you are the panelist, so you can make your video on and you can mute and unmute yourselves. Okay. So it's in your control only. Has the screenshot been taken? Yes, ma'am. I think it must be taken. Yes. Thank you so much, Jasim sir. Namaskar. And dear participants, again, we will meet tomorrow for the next session, the 5th session at 1 o'clock. So till then, bye-bye. Take care. Have a nice day. Thank God you. bless. Thank you so much, ma'am. Thank you. So now we are ending the session and we will meet again tomorrow at 1 p.m. Thank you so much, all the participants, for joining the session.